एलॉन मस्क तो सच में बाहुबली निकले। जब भी वो आते हैं, अपना कोई ट्वीट करते हैं या अपनी सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर ही चेंज करते हैं, तो क्रिप्टो मार्केट में कुछ ना कुछ मूवमेंट तो हमेशा आ ही जाती है। और ये लास्ट टाइम हुआ था मई के महीने में, जब उन्होंने ट्वीट से नहीं बट अपने एक्शन से पूरी क्रिप्टो मार्केट हिला दी थी। क्यों हिला डाला ना। मई के महीने में उन्होंने कहा था कि टेस्ला कंपनी अब से बिटकॉइंस एक्सेप्ट नहीं करेगी एज द पेमेंट्स, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करते हैं, उसका कार्बन फुटप्रिंट काफ़ी ज़्यादा है और वो काफ़ी पोल्यूशन क्रिएट करता है एनवायरनमेंट के लिए। इसलिए टेस्ला ने मना कर दिया था बिटकॉइन को यूज़ करने के लिए एज द पेमेंट ऑप्शन। लेकिन कल जो इवेंट हुआ था, जिसके बारे में हमने आपको अपनी कल की वीडियो में बताया भी था कि कैसे बी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में एलॉन मस्क कुछ ना कुछ अपडेट्स देंगे। एलॉन मस्क ने इस अपडेट में यही बताया इस कॉन्फ्रेंस में कि कैसे जो बिटकॉइन है वो ऑलरेडी ग्रीनर एनर्जी की तरफ मूव करता हुआ दिख रहा है हमें, क्योंकि एट प्रेजेंट 50% बिटकॉइंस ऑलरेडी रेन्यूएबल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं माइन होने के लिए, जिसका मतलब है कि टेस्ला शायद फ्यूचर में बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर ले एज द पेमेंट्स, क्योंकि जिस रीज़न से उन्होंने एक्सेप्ट करना बंद किया था वो रीजन कहीं ना कहीं अब दूर होता हमें दिख रहा है। तो चलिए अब जानते हैं कि एलॉन मस्क ने क्या कहा बी वर्ड बिटकॉइन। Been thinking about money for a long time, and really, I think it's best to think of money as an information system, primarily an information system for labor allocation, um, and for practical purposes, it exists in a series of heterogeneous databases, like very different databases in bank mainframes around the world. It moves quite slowly in reality. It may seem to move fast sometimes, and it does with PayPal, which is real time. But the vast majority of the systems out there are batch processing. So the actual reconciliation may take 1 to 5 business days, sometimes longer. And you have the ACH system, which is ancient and still in operation, which is allows transfers effectively like a check would be an ACH transfer, but it's not secure. And you've got the credit card systems, which are also not secure. It would be like handing your username and password to a stranger in a restaurant if you buy a meal. So there's definitely an opportunity for something that is better from an information theory standpoint. So and there you can think of it like data on a network. I think is the way to view it. What has the most throughput? What has the least error, what drops the fewest packets, fraud, for example, being a source of error, and government interference in currencies being a source of error. But it's fundamentally an information system. So I think it makes sense to support something that improves the quality of information with which we conduct the economy. And Bitcoin is a candidate for that. It does, I think, some things well, and it's obviously it's evolving, and there are additional things like Lightning being done on top of Bitcoin. But Bitcoin per se is mostly solving for scarcity, or rather solving for essentially having no throat to choke, decentralized. So there's no one who can be coerced in any way to empty their Bitcoin account. Well, I guess they could technically, but on an individual basis, but the system as a whole cannot. And it has an open ledger, which is also quite good. But transaction volume is low. Transaction cost is high, and usability for the average person is not yet very good, but it has a lot of potential. And I should say that, like, I'm not, and I apologize for taking a long time, but there certainly is a lot to say. In general, I'm a supporter of Bitcoin and the idea of cryptocurrency in general. But as I've said publicly, we do need to watch out for crypto taking, especially Bitcoin, using proof of work to maybe use energy that's maybe a bit too much and not necessarily good for the environment. So, but on balance, I support Bitcoin, and I'm not an investor. The only publicly traded stock I own is Tesla, and the only significant thing I own outside of Tesla is my SpaceX stock that help create both companies. So
But apart from that, I do own Bitcoin, and Tesla owns Bitcoin, SpaceX owns Bitcoin, and I do personally own a bit of Ethereum and Dogecoin, of course. So. और वहीं बाहुबली के छोटे भाई जैक डॉर्सी ने भी इस इवेंट में पार्ट लिया, जो कि ट्विटर के सीईओ हैं और जाने जाते हैं स्क्वायर कंपनी फाउंड करने के लिए, जो कि क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में एक रेवोल्यूशन लाना चाहती है बिटकॉइन के हार्ड वॉलेट्स और बिटकॉइन की सर्विसेज का एक नया प्लेटफॉर्म लाकर, जो हमने आपको अपनी पिछली वीडियोस में कहीं ना कहीं हर बार इसके बारे में अपडेट किया है। और जैक डॉर्सी के एंटर होने से, जैक डॉर्सी के बताने से कि कैसे ट्विटर अभी भी बिटकॉइन और इथेरियम होल्ड करती है, इथेरियम का भी प्राइस कल बढ़ गया, पैसा होगा। और एलॉन मस्क और जैक डॉर्सी की स्टेटमेंट्स के बाद, इस इवेंट के बाद बिटकॉइन का भी प्राइस बढ़ा। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में शामिल थी एक और बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी। आर्क इन्वेस्टमेंट्स की ओनर कैथी वुड्स ने भी इस कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया और उन्होंने भी अपने व्यूज़ बिटकॉइन के बारे में और इन सब के बारे में प्रेजेंट किए कि कैसे इसे फ्यूचर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। और जहां लास्ट मंथ बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा वॉलेटाइल ज़रूर था, थोड़ा ऊपर नीचे जाता हुआ हमें दिख रहा था, अपने हाईएस्ट ऑफ हाई से ये 55% तक लो हो चुका है एट द मोमेंट। लेकिन कल की कॉन्फ्रेंस के बाद हमें एक पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिली कि कैसे बिटकॉइन का प्राइस 8.5% से बढ़ गया और $32,000 जहां पे रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा था उसे भी इसने ब्रेक कर दिया और उसके भी ऊपर जाके बिटकॉइन का प्राइस $32,000 से भी ऊपर जाके पहुंच गया, जो कि बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए। इतनी खुशी, क्योंकि बहुत ही दिनों के बाद जब बिटकॉइन 30,000 से भी नीचे चला गया था, उसने अपना सपोर्ट ब्रेक कर दिया था, उसके बावजूद ये $32,000 पर जाके पहुंचा। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि शायद ऐसे कॉन्फ्रेंसेस ऐसे ऑर्गेनाइज और होंगी और ऐसे इवेंट्स होंगे जिनसे फ्यूचर में भी बिटकॉइन के साथ साथ बाकी ऑल्ट कॉइन्स के प्राइजेस पे भी इफेक्ट होगा और ये क्रिप्टो मार्केट जो है वो हमें थोड़ी पॉजिटिव चीज़ें आगे फ्यूचर में शायद बताएगी। लेकिन इस सब पॉजिटिव न्यूज़ के बाद भी डेरिवेटिव्स का अगर डेटा आप एनालाइज करें, जिसमें प्रो मार्केट ट्रेडर्स ही इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, उनके अकॉर्डिंग अभी भी वीकनेस के साइंस थोड़े नजर आ रहे हैं बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसीज में, जिसका मतलब है कि शायद फ्यूचर में बिटकॉइन अभी भी थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है। चल झूठा। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट और इस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या आप बिटकॉइन या किसी और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे? अरे हाँ भाई हाँ। अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि हम भी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं। इसके बाद आते हैं हम बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन पे जो हमारी टीम ने ऑब्जर्व की। कल आर्क इन्वेस्टमेंट से कैथी वुड्स भी बी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस का पार्ट थी, ये तो हमने आपको बता दिया। लेकिन क्या आपको पता है इनकी आर्क इन्वेस्टमेंट ने मंडे और ट्यूसडे को खरीदे थे $10 मिलियन के GBTC के शेयर्स, यानी कि ग्रे स्केल के बिटकॉइन ट्रस्ट के शेयर्स इन्होंने मंडे और ट्यूसडे को खरीदे थे, जबकि इन्हें पता था कि वेंसडे को ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसके बाद शायद बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा बढ़ सकता है। बहुत तेज हो रहा है ये, इसे हम स्मार्ट मूव कहेंगे या मार्केट की मैनिपुलेशन, ये तो हमें थोड़ा वक्त ही बताएगा। क्योंकि लास्ट टाइम भी जब कैथी वुड्स ने, इनकी कंपनी ने, आर्क इन्वेस्टमेंट्स ने बिटकॉइन खरीदे थे, तो वो टाइम था 23 जून। तब भी बिटकॉइन का प्राइस $30,000 से थोड़ा कम था और आज भी बिटकॉइन का प्राइस $30,000 से थोड़ा कम था मंडे और ट्यूसडे को, जब आर्क इन्वेस्टमेंट्स ने इसमें इन्वेस्ट किया। समझ रहे हो ना? तो क्या ये मार्केट मैनिपुलेशन है? क्या ये बड़े बड़े पर्सनालिटीज, ये बड़े बड़े नेम्स बिटकॉइन जो है वो चोरी कर लेना चाहते हैं, उसमें अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं और सारा प्रॉफिट जो है वो खुद ही लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि कोई ऐसा इवेंट आ रहा है। तो इन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट जो की थी वो 9 मिलियन शेयर्स की हो चुकी है, जिसका टोटल कंबाइंड वर्थ $217 मिलियन का है। ये हम बात कर रहे हैं आर्क इन्वेस्टमेंट, कैथी वुड्स की कंपनी के बारे में। तो इनकी $217 मिलियन की इन्वेस्टमेंट तो शायद फ्यूचर में ऊपर ही जाएगी, क्योंकि इनकी कॉन्फ्रेंस के बाद तो प्राइस बढ़ा ही था और इनके इन्वेस्टमेंट्स का भी प्राइस डेफिनेटली बढ़ा होगा जो उन्होंने GBTC में किया है। तो क्या इनके $217 मिलियन की वैल्यू फ्यूचर में बढ़ेगी? क्योंकि अभी बिटकॉइन का प्राइस तो थोड़ा बढ़ ही रहा है इसकी कॉन्फ्रेंस के बाद।
कहते हैं बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती है, लेकिन ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ये बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करके हमसे हमारे बिटकॉइंस छीनना चाहते हैं क्या? अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि क्या आपको ये गेम चेंजिंग एनवायरनमेंट लगता है या मार्केट मैनिपुलेशन। इससे हमें पता चलता है कि कैसे कैथी वुड्स जो हैं वो शायद एलॉन मस्क और जैक डॉर्सी से भी स्मार्ट है। हमने आपको थोड़े दिन पहले की वीडियो में बताया था कैसे इंडिया में विमेन इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं और कैसे इकोनॉमिक टाइम्स के एक सर्वे में हमें पता चला कि विमेन इन्वेस्टर्स काफ़ी बेटर है मैन इन्वेस्टर्स से। तो अभी भी टाइम है, अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ से ट्रेडिंग करवाना शुरू कर लीजिए, क्योंकि तभी आपका प्रॉफिट शुरू होगा, हम आपको बता रहे हैं। अब हम आते हैं बैलेंसर की वीकली अपडेट पे, जहां पिछला महीना और पिछला हफ्ता क्रिप्टो करेंसी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट था। वहीं V2 की वैल्यू जो है वो 562 मिलियन यूएस डॉलर से बढ़ के 696 मिलियन यूएस डॉलर्स पे पहुंच गई, और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि V2 पे इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे स्टेबल पूल्स। इसके बाद पॉलीगन के TVL की वैल्यू भी 80 मिलियन डॉलर से 100 मिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच गई। इसकी लिक्विडिटी माइनिंग की बात करें तो GNO पूल जो है वो अभी भी मार्केट प्राइस के आसपास ही कहीं 60% की एनुअल यील्ड परसेंटेज डिलीवर कर रहा है। और अगर हम बैलेंसर के इकोसिस्टम की बात करें तो हमें पता चला कि बैलेंसर इकोसिस्टम फंड से 2222 BAL टोकन्स का ग्रांट दिया था स्पेक्टर नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन को, जो NFTs को शार्ड कर देंगे इनटू ERC20 टोकन्स। और इनके एक कम्युनिटी मेंबर ने भी क्रिएट किया है एक निफ्टी टूल जो कि पॉलीगन पे क्रिएट किया गया है ताकि ट्रैक किए जा सके इनके बैलेंसर के पूल रिवॉर्ड्स जितने भी ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर हम इसके गवर्नेंस की बात करें तो हमें पता चला कि कैसे फायर आइज डाओ ने सबमिट किया है एक प्रपोजल ताकि उन्हें स्ट्रैटेजिक पार्टनर और एक्टिव गवर्नेंस पार्टिसिपेंट के लिए बैलेंसर जो है वो ऑन बोर्ड अपनी टीम में शामिल कर ले। इसके बाद हमें पता चला कि हेड ऑफ लिक्विडिटी एंड माइनिंग कमेटी ने सबमिट की है एक रिक्वेस्ट ताकि WETH और DAI के पेयर को रिप्लेस किया जा सके WETH और USDC के पेयर के साथ। और इसमें ही एक और प्रपोजल ऐड किया था उन्होंने, जहां पे आवे को वो कह रहे हैं कि माइग्रेट कर देना चाहिए आवे WETH के पूल को बैलेंसर V2 पूल के साथ। तो दोस्तों आज की क्रिप्टो न्यूज़ में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बेनिफिशियल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम क्रिप्टो न्यूज़ या कोई भी एजुकेशनल अपडेट की वीडियो पोस्ट करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही पहुंचे। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।